ہیں اسامہ بن عبید۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے خوشخبری، حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کر دی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول 7 روپے 54 پیسے سستا، فی لیٹر قیمت 264 روپے 61 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 1 روپیہ 48 پیسے مہنگا، فی لیٹر قیمت 285 روپے 83 پیسے مقرر۔ وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ مہنگائی مافیا کا راج برقرار، شہری سستی اشیاء خریدنے کو ترس گئے۔ برائلر گوشت کے دام عدم استحکام کا شکار، مرغیا گوشت 7 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 562 روپے، فارمی انڈے 276 روپے فی درجن۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8160 روپے میں دستیاب۔ مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے، بتائیے عبدالقادر۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقطنامے جاری کیے گئے، آج دوسرے روز بھی برائلر کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا۔ گزشتہ روز بھی 7 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا، آج مزید 7 روپے بڑھا کر برائلر کو جو ہے 562 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کیا گیا اور فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 360، جبکہ ہول سیل زندہ برائلر جو ہے 374 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ پرچون بازاروں کے لیے زندہ برائلر کی قیمت 388 روپے مقرر کی گئی ہے اور انڈوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی نہیں آ سکی۔ انڈوں کی قیمتوں میں جو روزانہ کا اضافہ تھا وہ اب جو ہے وہ رک چکا ہوا ہے۔ 276 روپے فی درجن کی سطح پر قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں اور ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8160 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی فروخت مارکیٹ میں مہنگے داموں کی جا رہی ہے، 276 کے برعکس 290 سے 300 روپے فی درجن تک مارکیٹ میں انڈے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو برائلر گوشت ہے وہ 562 روپے سرکاری ریٹس میں، لیکن مارکیٹ میں برائلر گوشت جو ہے صافی برائلر گوشت 650 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ معطل اپوزیشن رکن شیخ امتیاز نے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کو خط لکھ دیا۔ خط الیکشن کمیشن پاکستان، گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کیا گیا۔ شیخ امتیاز نے خط میں معطلی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے اور منظور ہونے والے بل کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ رکن اسمبلی شیخ امتیاز محمود نے 28 جولائی کے اجلاس کے دوران کورم کی کمی کی نشاندہی کی، جس پر اجلاس کو روک کر کورم کی گنتی کروانی چاہیے تھی۔ اس کے بجائے قائم مقام اسپیکر نے شیخ امتیاز محمود کو معطل کر دیا، جو غیر قانونی اقدام ہے۔ درخواست ہے کہ اس غیر قانونی عمل کو واپس لیا جائے، 4 بلز کی منظوری ختم کر کے انہیں اسمبلی میں دوبارہ پیش کیا جائے۔ لاہور میں نئے تعینات امریکی قونصل جنرل اسٹیٹن سینڈرز کون ہیں؟ اسٹیٹن سینڈرز کون سی اہم ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں؟ اس حوالے سے محمد حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ امریکی قونصل جنرل لاہور اسٹیٹن سینڈرز کا شمار امریکی محکمہ خارجہ کے بہترین اور قابل سفارتکاروں میں ہوتا ہے۔ اسٹیٹن سینڈرز سفارتکاری میں 20 سال سے زائد عرصے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی پروجیکٹ مینجمنٹ اور آپریشنز میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اسٹیٹن سینڈرز بھارت میں بطور وائس قونصل 2007-2008 میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اسٹیٹن سینڈرز تاجکستان میں جنرل سروسز آفیسر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اسٹیٹن سینڈرز حکومتی مالیاتی عمل پر تاریخی تحقیقی مقالہ بھی لکھ چکے ہیں۔ اسٹیٹن سینڈرز نے متعدد اسناد اور ایوارڈز حاصل کیے، جس میں سروس اور فوجی اعزازات شامل ہیں۔ اسٹیٹن سینڈرز کی پاکستان سے متعلق تیسری اسائنمنٹ ہے، جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے لیے ان کی گہری وابستگی کی عکاسی کرتی ہے۔ لاہور میں یو ایس نیشنل ڈے کی خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں نئے امریکی قونصل جنرل اسٹیٹن سینڈرز نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ قونصل جنرل اسٹیٹن سینڈرز نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اسٹیٹن سینڈرز نے لاہور میں 35ویں امریکی قونصل جنرل کے طور پر جوائن کیا ہے۔ یو ایس نیشنل ڈے کی تقریب میں اسٹیٹن سینڈرز نے ذمہ داریاں سنبھالی، جس کے دوران حاضرین نے سبکدوش ہونے والے قونصل جنرل کرسٹن ہاکنس کو بھی الوداع کہا۔ پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، حکومتی عہدیدار، کاروباری شخصیات، سول سوسائٹی، میڈیا اور سفارتی کور کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ اسٹیٹن سینڈرز نے کہا کہ میں پاکستان واپس آنے پر بہت پرجوش ہوں۔ اس اہم کردار میں خدمات انجام دینے پر مجھے فخر ہے۔ میں پنجاب بھر میں اپنے بہت سے شراکت داروں کے ساتھ اپنے تعاون کو مزید گہرا کرنے کا منتظر ہوں۔ I served at the embassy in Islamabad. I was there from 2019 to 2021. But my first trip to Lahore was actually in 2018. So it's a great honor for me to be here as the 35th Consul General of the United States.
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने खिताब करते हुए कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होना एक नए दौर का आगाज है। कौंसल जनरल सैंडर्स को खुशामदीद कहते हैं। The bond between Pakistan and the US has grown over the decades, not just through diplomacy, but through education, business and people-to-people ties. अमरीकी कौंसलेट जनरल पंजाब भर में बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम, खुशहाली और महफूज तरीके से शराकतदारी को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। बढ़ती महंगाई के बाद शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मार्केट में टिंडे 350, करेले 220, आलू 120 रुपये किलो दस्तयाब, पपीता 550, सेब 380, आम चौंसा 300, गरमा 220 रुपये फी किलो। अब्दुल कादिर से मज़ीद जान लेते हैं, बताइए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, जो रोजाना की बुनियाद पर जारी किए जाते हैं ताकि शहरियों को सब्जियां और फल जो है मुकर्रर करदा कीमतों पर दस्तयाब हो सके। उसमें सब्जियों की लिस्ट में 2 सब्जियां मजमूई तौर पर महंगी की गई हैं, लेकिन मौसमी सब्जियों की सूरत हाल ये है कि मार्केट में जो सरकारी रेट है उसके बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। जिन सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया उनमें लीमू देसी 10 रुपए महंगा करके 300 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में लीमू देसी 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में टिंडे देसी 190 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में देसी टिंडे जो है 300 से 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह करेले 180 के बरक्स 220 रुपए फी किलो तक, पालक 70 रुपए सरकारी इसमें मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक पालक फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी 120 के बरक्स 180 रुपए, फूल गोभी 160 के बरक्स 200 रुपए फी किलो तक जो है वो फरोख्त की जा रही है। भिंडी 180 रुपए सरकारी रेल इसमें मार्केट में 250 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल की भिंडी फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 190 रुपए सरकारी रेल इसमें मार्केट में शिमला मिर्च भी 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। घिया कद्दू 200 रुपए सरकारी नकनामे में मुकर्रर किया गया, ताहम मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। घिया तोरी 100 रुपए सरकारी नकनामे में आज मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 150 से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। 2 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया। सेब का 10 रुपए इजाफे के बाद 255 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही सेब दर्जा अव्वल जो है 380 से 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का जो सेब है वो 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 210 रुपए सरकारी नरखनामे में मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का केला 250 रुपए फी दर्जन जो है फरोख्त किया जा रहा है। गरमा 10 रुपए महंगा करके 150 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 220 से 240 रुपए फी किलो तक गरमे की फरोख्त की जा रही है। और आड़ू 10 रुपए महंगा करके 260 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 350 से 380 रुपए फी किलो तक आड़ू फरोख्त किया जा रहा है। फल जो है वो सरकारी नकनामों के बरक्स जो है गैर मामूली तौर पर महंगे दामों शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जियों की सूरत हाल भी यही है कि हर दुकानदार का रेट अलग है। सब्जियां जो है मेयार के मुताबिक फरोख्त की जा रही हैं, अगर मेयारी हैं तो सरकारी रिलीज के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होंगी। जी आपका बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बैरून मुल्क से ख़रीदारी करने वाले सार्फिन के लिए खुशखबरी, 5% डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड टैक्स के खात्मे से अरबों रुपए का फ़ायदा मिलेगा। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF के मशवरे से नए इक़दामात मुतारिफ कराए जाएंगे। IMF के मुतालबे पर बजट में मसनूआत और खिदमात की ऑनलाइन खरीदारी पर 5% डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स टैक्स आयद किया था। ये टैक्स इन कंपनियों पर लागू किया गया था जिनके दफातर पाकिस्तान में मौजूद नहीं। टैक्स खत्म होने के बाद बैरून मुल्क से डिजिटल सर्विसेज, ऑनलाइन शॉपिंग और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से खरीदारी की लागत में कमी आएगी। नेटफ्लिक्स, मेटा, एप्पल, अमेज़न, अली एक्सप्रेस और टीमू जैसे प्लेटफॉर्म्स के सार्फिन मुस्तफीद होंगे। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता माली साल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 317 अरब रुपए से जायद मालियत की खरीदारी की। माली साल 2024-25 के दौरान ऑनलाइन ऐप्स के जरिए 4 करोड़ से जायद ट्रांजैक्शंस की गईं। शहर में चीनी की किल्लत खत्म न हो सकी। इंतजामिया की जानिब से लाहौर डिवीज़न की चीनी की सप्लाई के एदाद-ओ-शुमार जारी किए गए, लेकिन परचून दुकानदार जुर्मानों और गिरफ्तारियों के डर से चीनी की खरीद फरोख्त से कतराने लगे। शहरी चीनी की तलाश में एक से दूसरी दुकान का चक्कर लगाने। चीनी की सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी का मामला। लाहौर में चीनी की किल्लत बरकरार। हुकूमत ने परचून निर्ख 173 रुपए फी किलो मुकर्रर किए, लेकिन बाजार में चीनी की होलसेल कीमत 176 रुपए फी किलो है। दुकानदार महंगी चीनी खरीदकर सस्ती बेचने से कतराने लगे। जुर्मानों और गिरफ्तारियों से बचने के लिए परचून और किराना दुकानदार चीनी की खरीदो फरोख्त से इज्तिनाब कर रहे हैं।
कहते हैं चीनी की पहले मनमानी कीमत वसूल की जाती थी, लेकिन जब से सस्ती हुई चीनी मिल ही नहीं रही। हुकूमत को चीनी दरामद करना पड़ रही है तो पहले बरामद क्यों की? कहाँ सस्ती कर दी है यार, कहाँ से मिल रही है हमें बता दें। ये दुकानें हैं, इनसे पूछे हैं, वो कहते हैं ही नहीं। इन्होंने सारी बाहर भेज दी, अफगानिस्तान को भेज दी। अभी जब हमें चाहिए तो बाहर से लेके आ रहे हैं जी, वो इम्पोर्ट करके तो हमें ठीक ठाक दाम दे रहे हैं। चीनी बोझ कहीं से मिल नहीं रही, शार्ट हुई है, उसकी वजह से हर दुकानों वाले अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ बेच रहे हैं। कई यानी कि एक दुकान छोड़ के दूसरी तीसरी दुकान पे रेट हो रहा है, उसका रेट हो रहा है, ऐसे ऐसे चीनी मिल रही है। करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन पंजाब का कहना है कि जिला इंतजामिया परचून दुकानदारों को हिरासा करने से गुरेज करे। जिस दुकानदार के पास चीनी नहीं उसे भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ताजिर जिले अफसरान की बदतमीजी और हरासानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। तर्जुमान शुगर मिल एसोसिएशन का कहना है कि चीनी की कीमतों को बरामदात से जोड़ना सरासर हक़ाइक़ के मुनाफी है। डीलर सट्टाबाज माफिया अपने मकासद के तहत चीनी की मसनूई किल्लत का तासुर दे रहे हैं। शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेट किया जाए ताकि मामलात बेहतर हों। मिलों का ताल्लुक सिर्फ एक्स मिल कीमतों तक होता है। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क में 20 नवंबर 2025 तक चीनी के वाफर स्टॉक्स मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से बाज़ इंतजामी इक़दामात की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर हुई थी। अब बेहतरी आने पर चीनी की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। मिलों का ताल्लुक सिर्फ एक्स मिल कीमतों तक होता है। चीनी की रिटेल कीमत का तयन अमूमन मार्केट फोर्सेज करती है, मगर अब हुकूमत फीन के बजाय चीनी सनती व कमर्शियल इदारों को ज्यादा मुनाफे पर दे रहे हैं। चीनी की कीमतों को बरामदात से जोड़ना सरासर हक़ाइक़ के मुनाफी है। गुज़श्ता बरसों में मिलों की पैदावारी अखराजात में कई गुना इजाफा हुआ। गुज़श्ता कई सालों से शुगर मिलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। मुसलसल नुकसान की वजह से 12 शुगर मिलें बंद पड़ी हैं। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन का मजीद कहना है कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ शुगर सेक्टर की डी रेगुलेशन है। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मुल्क भर में सस्ती अशिया खुरनोश फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। वजारत सनत और पैदावार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम फाल स्टोर्स पर मौजूद स्टॉक को वेयर हाउसेज में मुंतकिल किया जाएगा। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद, वजारत सनत और पैदावार का नोटिफिकेशन जारी। खरीदो फरोख्त रोकने के अहकामात। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर वजीर आजम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बाद बंद किए गए। स्टोर पर मौजूद सामान को वेयर हाउसेज में मुंतकिल किया जाएगा। IT सामान और दीगर असासों की नीलामी की जाएगी। किराए पर हासिल किए गए स्टोर को 1 अगस्त से खाली करने के नोटिस भी जारी कर दिए गए। यहाँ वक्त तो है एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़ बड़े और आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब का अशिया की कीमतों में काबू पाने के लिए नई मिनिस्ट्री तश्कील देने का फैसला। दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कम्युनिटीज़ तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल गुज़िश्ता रोज़ इजलास में कसरत राय से मंजूर हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। देगी दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज तरमीमी बिल 2025 पंजाब असेंबली में कसरत राय से मंजूर। बिल गुज़श्ता रोज इजलास में मंजूर किया गया। तरमीमी बिल के तहत दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 में तरमीम तजवीज़ की गई हैं। तरमीम के तहत प्राइस कंट्रोल काउंसिल की सदारत मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल या वजीर आला के नामजद करदा अवामी नुमाइंदे के पास होगी। इससे पहले सदारत वजीर सनत और तिजारत या वजीर आला के नामजद करदा अवामी नुमाइंदा डायरेक्टर जनरल कमोडिटीज करने की तजवीज़ भी मंजूर की गई। नए अरकान में लाइव स्टॉक, ज़रई मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और पंजाब सहूलत बाजारों के सरबराह शामिल। माहिरीन और स्टेक होल्डर्स की तादाद 3-3 मुकर्रर करने की तजवीज़ है। दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज तरमीमी बिल 2025 की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। LPG की कीमतों में कमी कर दी गई। ओगरा ने अगस्त के लिए गैस की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया। LPG की कीमतों में 17 रुपये 73 पैसे फ़ी किलो कमी की गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 209 रुपये सस्ता हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2054 रुपये मुकर्रर। LPG की नई कीमत 174 रुपये किलो मुकर्रर की गई। ओगरा ने अगस्त के लिए गैस की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया। बलोचिस्तान मार्च का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरने का दूसरा रोज़। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान का शुरका से खिताब, कहा जमहूरियत हो या मार्शल लॉ, सब मिलकर आवाम के हकूक़ को पामाल कर रहे हैं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बलूचिस्तान मार्च के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि ये तासुर दिया जा रहा था कि पंजाब के लोग बलूचिस्तान के खिलाफ हैं या बलूचिस्तान के लोग पंजाब के खिलाफ हैं, मगर जिस तरह आपका इस्तेकबाल किया गया, अवाम ने भरपूर अंदाज में लॉन्ग मार्च शुरका को सराहा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि लाहौर पाकिस्तान की आवाज़ है और इस जगह से हिदायतुर रहमान ने सबसे बात की है। जमात इस्लामी बलोचियों, पख्तूनों, पंजाबियों के हकूक़ की बात करती है। पाकिस्तान के लिए सब ने कुर्बानियाँ दी। आप यहाँ पर लाहौर में पहुँचे और लाहौर में जमात इस्लामी की क़यादत ने ही नहीं बल्कि यहाँ के अवाम ने भी आपका इस्तकबाल किया और यकीनन ये बात अब बहुत वाज़ेह हो गई है कि पंजाब बलूचिस्तान के साथ है, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के साथ है, सिंध बलूचिस्तान के साथ है, पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान और बलोच अवाम के साथ है। धरने के शुरका से मौलाना हिदायतुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि जब हम पंजाब में दाखिल हुए तो डेरा गाजी खान से लाहौर तक पंजाब के अवाम ने बेहद मोहब्बत की। जब हम पंजाब में दाखिल हुए, डेरा गाजी खान से लेकर लाहौर तक पंजाब के अवाम ने हमारा शानदार इस्तकबाल किया, हमारी खिदमत की, मेहमानदारी की, हमसे मोहब्बत का इज़हार किया। मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा कि अपना दुख इस्लामाबाद वालों को सुनाना चाहते हैं। हमारे पास अस्पताल हैं न जामियात, हमें मेडिसिन, कलम और किताब चाहिए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। अन्य 129 लाहौर 3 में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान गनी को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। आरओ उस्मान गनी ने NA 129 ज़िमनी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक शेड्यूल जारी किया। ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 4 अगस्त से 6 अगस्त तक आरओ दफ्तर में जमा होंगे। आरओ उस्मान गनी का कहना है कि नामजद उम्मीदवारों के नाम 7 अगस्त को शाये कर दिए जाएंगे। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की आखिरी तारीख 11 अगस्त, आरओ के कागजात को मुस्तरद या मंजूर करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त मुकर्रर। एपलेट ट्रिब्यूनल के अपीलों पर फैसला करने की आखिरी तारीख 22 अगस्त बनाई गई है। पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। बारिशों के बायस पेश आने वाले हादसात में 162 अफराद जान की बाजी हार चुके तो 558 शहरी जख्मी हुए। बारिशों के बायस दरियाओं में भी पानी के बहाव में इजाफा। दीगर इलाकों की तरह पंजाब में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में 100, गुजरांवाला में 47 और झंग में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर के शहरियों को अलबत्ता हल्की फुल्की बारिश पर ही इक्तिफा करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों का सिलसिला। सूरत हाल पर एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि बारिशों के बाइस पंजाब में पेश आने वाले हादिसात के दौरान 162 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 558 शहरी जख्मी हुए, 214 घर मुतासिर और 121 मवेशी हलाक हो चुके हैं। बारिशों के बाइस दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। मॉल्डो ऑफिसर 1 ओहदे 15। महकमा सेहत आबादी में एक ऑफिसर पर नवाज़शात की बारिश। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर खलील अहमद सुखानी को अरबों रुपए वाले इदारों के ओहदे तफवीज़। डीजी हेल्थ के पास कौन कौन से इजाफी ओहदे हैं, हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। महकमा सेहत व आबादी में एक अफसर पर नवाजिशात की बारिश। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर खलील अहमद सिखानी को अरबों रुपए वाले इदारों के 15 ओहदे तफवीज। डीजी हेल्थ को मजीद क्या जिम्मेदारियां दी गयी, रोजनामा दुनिया तफसीलात सामने ले आया। डॉक्टर खलील अहमद सिखानी को मुतअद्दिद प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स का सरबरा मुकर्रर किया गया। जच्चा बच्चा नौजायदा बच्चों की सेहत ग़िज़ा के प्रोग्राम IRMNCH के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बुनियादी मराकज़ सेहत के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज की आउटसोर्सिंग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स, शहरी डिस्पेंसरियों और फिल्टर क्लिनिक्स प्रोजेक्ट शामिल हैं। पंजाब के बुनियादी मराकज़ सेहत में बिस्तरों और दीगर साजो सामान की तब्दीली प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वज़ीर आला ग़ज़ाई किल्लत में कमी प्रोग्राम और वज़ीर आज़म सेहत प्रोग्राम के भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। बुनियादी मराकज़ सेहत और दीही हेल्थ सेंटर्स के लिए आलात और फर्नीचर की फ्राहमी के प्रोग्राम के भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। वज़ीर आला का फ्लैगशिप प्रोग्राम क्लिनिक ऑन व्हील्स भी इनके मातहत काम करता है। दीही मराकज़ को 20 बिस्तरों वाले दीही अस्पतालों में तब्दील करने के प्रोग्राम के भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। बुनियादी हेल्थ यूनिट्स के लिए सिक्योरिटी सोर्सेज की आउटसोर्सिंग प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, IRMNCH प्रोग्राम के लिए यूनिसेफ और अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी से मुतल्लिक फंड के माली मुआवनत प्रोग्राम में भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। डॉक्टर खलील अहमद सिखानी का डीजी हेल्थ पंजाब का ओहदा तादाद में 15वां है। महकमा सेहत और आबादी के तर्जुमान ने मौक़िफ़ देने से माजरत कर ली। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर खलील अहमद सिखानी की जानिब से भी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हसन रजा, लाहौर न्यूज़।
कान्हा में बुजुर्ग शहरी को कत्ल करने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन निशान रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शुमाली छावनी में 10 साल सगी बेटी का कातिल सफाक बाप भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद और एसपीस के हमरा पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिम ने अपने दोस्त को बेटे के साथ मिलकर अगवा करके कत्ल कर दिया। लाश जड़ावाला रेस्ट एरिया में ले जाकर जला दी। मुलजिमान मकतूल की बेटी से तावान का मुतालबा करते रहे। 72 साल बुजुर्ग शहरी को मर्डर किया गया था और वो अल्हम्दुलिल्लाह कान्हा का ये हमारा पर्चा था। ये मॉल टाउन डिवीज़न ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इन्होंने इनको घर बुलाया, घर बुला के पहले उसको जो है पानी में मिलाकर कैपोटिन की दवाई दी गई, गोलियां 5-6 खिलाई गई जिससे उसका ब्लड प्रेशर कम हुआ। फिर गला दबाकर उसको कत्ल किया गया और उसके बाद ये उसको लेकर जड़ावाला रेस्ट एरिया चले गए और वहाँ पर बैक साइड पे ले जाकर उसकी बॉडी को आग लगा दी। और उसको मारने के बाद इन्होंने तावान का मुतालबा किया उसकी बेटी से जो कि कनाडा में रहती थी। डीआईजी जिशान रजा का कहना था कि 10 साल सगी बेटी ईमान फातिमा को कत्ल करने वाला सफाक बाप भी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने मामूली लड़ाई पर अपनी बेटी के सर, चेहरे और जिस्म पर ईंटों के वार करके उसे कत्ल कर दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 9 मई के एक केस का फैसला आया है। उन केसेस में मुलव्विस बहुत से इश्तिहारी गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 साल बच्ची थी ईमान फातिमा जिसको उसके बाप ने कत्ल किया था और उस बाप का कोई मेंटल उसको इलनेस थी कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता था और उसने कत्ल भी ऐसे किया कि उसने ईंटें और पत्थर मार के उस बच्ची को कत्ल किया। उसके बाद वो भाग गया था और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। जिशान रजा का कहना था कि इचरा में दुकान से लाकर तोड़कर 85 तोले सोना चोरी करने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम दुकान में मुलाजिम था। सलमान शहबाज के खिलाफ जाली चेक का मुकदमा दर्ज करने का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस साली इंग्लैंड ने सेशन कोर्ट का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कलअदम करार दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट की अरबों रुपए की सब्सिडी स्कीम में संगीन माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। ऑडिटर ने रिकॉर्ड की दस्तयाबी गैर वाज़ेह अदायगियों पर 489 मिलियन रुपये से ज़ायद वापस न किए जाने पर शदीद एतराज़ात उठाए हैं। शहरियों को रोजगार फराहम करने की नीयत से पंजाब हुकूमत ने 2015 में 50,000 गाड़ियों की सब्सिडी स्कीम मुतारिफ करवाई। स्कीम के तहत सुजुकी, रावी और बुलान गाड़ियां बैंक ऑफ पंजाब के जरिए फराहम की जाना थी और सूद की अदायगी हुकूमत के जिम्मा थी, जो तखमीना के मुताबिक 6.829 अरब रुपए थी। मगर हालिया ऑडिट रिपोर्ट ने स्कीम की माली हैसियत को मशकूक बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 342.30 मिलियन रुपए की सब्सिडी महकमा फाइनेंस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जरिए अदा की, मगर इस अदायगी की कोई मुकम्मल वर्किंग तफसीली हिसाब या फहरिस्त दस्तयाब नहीं। बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से ये भी वाज़ेह नहीं किया गया कि कितनी गाड़ियां फाइनेंस हुई। सुजुकी की जानिब से स्कीम के तहत कितनी गाड़ियां फरोख्त हुई, इसका रिकॉर्ड भी महकमा ट्रांसपोर्ट के पास मौजूद नहीं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 489.546 मिलियन रुपए महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुकर्ररा वक्त पर वापस नहीं किए, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में गफलत की निशानी है। ऑडिट के मुताबिक ये तमाम सूरत-हाल महकमाना कंट्रोल सिस्टम की कमजोरी और माली नज़्म ज़ब्त की कमी को जाहिर करती है। ऑडिट रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि स्कीम के तमाम मुस्तहकीन की फहरिस्त, बैंक से हासिल शुदा गाड़ियों की तफसील और अदायगियों का रिकॉर्ड फौरी फराहम किया जाए और जो रकम वापस नहीं की गई उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट से रेगुलराइज कराया जाए। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। ग्रेटर इकबाल पार्क में बच्चों का तफरीही पार्क खस्ता हाली की तस्वीर। पार्क में नस्ब झूले और स्लाइड्स टूट फूट का शिकार। स्लाइड्स पर जगह जगह जंग और तेज धार धात के टूटे हुए किनारे जो किसी भी वक्त बच्चों में ग्रेटर इकबाल पार्क जहां सयाहों की बड़ी तादाद सैरो तफरीह के लिए आती है, इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार हो चुका। बच्चों के लिए बनाया गया तफरीही पार्क इंतहाई खस्ता हाल। पार्क में नस्ब झूले। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पार्क की फौरी मरम्मत और बहाली की जाए ताकि यहाँ आने वाले सयाहों खसूसन बच्चों और फैमिलीज को बेहतर तफरीही सहूलियात मैसर आ सकें। कैमरामैन अदनान के साथ सामी सईद, लाहौर न्यूज़। दरखास्तों शिकायत का फौरी इज़ाला यकीनी बनाने का आज़म। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में अवामी सर्विसेज की बेहतरी के लिए बड़ा इंतजामी फैसला। अब सीनियर ऑफिसर दफातर में बैठने की बजाय बराह रास्त शहरियों के दरमियान बैठेंगे।
शहरी सहूलत मरकज की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए LDA का बड़ा फैसला। DG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर तमाम एडिशनल DGs, विंग हेड्स, मुतलका डायरेक्टर्स दफातर के साथ साथ खिदमत मरकज में भी बैठेंगे। फैसले के मुताबिक तमाम एडिशनल DGs और विंग हेड्स रोजाना सुबह 11 से 12 बजे तक शहरी मरकज में मौजूद रहेंगे। शेड्यूल के मुताबिक एडिशनल DG हाउसिंग पीर के रोज, एडिशनल DG अर्बन प्लानिंग मंगल को सहूलत मरकज में बैठेंगे। एडिशनल DG हेडक्वार्टर्स बुध के, एडिशनल DG कच्ची आबादी जुमेरात और एडिशनल DG SI जुमे के रोज मरकज में शहरियों से मुलाकात करेंगे। DG LDA ने हिदायत की है कि चीफ टाउन प्लानर, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग और तमाम मुतलका विंग्स के डायरेक्टर्स अपने दायरा इख्तियार में आने वाली तमाम दरख्वास्तों पर रोजाना फॉलो अप को यकीनी बनाएं। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 असम्बली से मंजूर। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ अब हॉर्टिकल्चर एजेंसियां कहलाएंगी। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद एक्ट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अवामी पार्कों, ग्रीन बेल्ट और सब्ज इलाकों की बेहतरी के लिए कानून साजी। पंजाब हुकूमत का पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बिल असम्बली से मंजूर। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर आला पंजाब अथॉरिटी की चेयरपर्सन होंगी। तरमीम के बाद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ एजेंसीज में तब्दील हो जाएंगी, जबकि अथॉरिटी के इश्तिहारात, साइन बोर्ड और सब्ज इलाकों की तज़यीन और राइश पर मुकम्मल इख्तियार होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर में सुई गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कुदरती गैस की बजाय RLNG की बुनियाद पर कनेक्शन फराहम किए जा सकेंगे। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने RLNG की बुनियाद पर कनेक्शन के लिए तजावीज़ विफाक को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक दरामदशुदा RLNG पर कनेक्शन के लिए भारी सिक्योरिटी लेने की तजवीज़ दी गई। कनेक्शन के डिमांड नोटिस से कबल सार्फिन से स्टाम्प पेपर लेने की तजवीज़ भी दी गई है। स्टाम्प पेपर पर सार्फिन RLNG के टैरिफ पर कनेक्शन लेने का हल्फ देंगे। RLNG ट्रैफिक को किसी भी प्लेटफार्म पर चैलेंज न करने का हल्फ लिया जाएगा। LDA की अराज़ी एक्विजिशन पर मुबैना बेज़ाब्तियाँ सामने आ गई। गिरफ्तार पटवारी मोहम्मद सदीक के खिलाफ एंटी करप्शन ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मोहम्मद सदीक ने 7 मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट के लिए ज़मीनें एक्वायर की, जिनमें सिग्नल फ्री आज़ादी चौक मेट्रो बस सिस्टम और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन शामिल है। मुलजिम ने शेरावाला फ्लाईओवर, शाहदरा फ्लाईओवर पैकेज 1 और 2 के लिए भी अराज़ी की खरीदारी में किरदार अदा किया। एंटी करप्शन ने इन तमाम मनसूबों में अराज़ी एक्विजिशन की मद में होने वाली अदायगियों की तफसीलात तलब कर ली। सरकारी बजट न मिलने पर LDA ने मुतबादिल हिकमत अमली तैयार कर ली। 3 मनसूबे खुद LDA के वसाइल से मुकम्मल करने की तजवीज़। गवर्निंग बॉडी को इस साल पंजाब हुकूमत की जानिब से माली साल 2025-26 के बजट में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरिंग विंग को ना तो कोई अंडरपास दिया गया, ना फ्लाईओवर, ना ही किसी इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड मुख्तस किए गए। तरक्याती बजट में नज़रअंदाज किए जाने के बाद LDA ने मुतबादिल हिकमत अमली इख्तियार करते हुए 3 अहम मनसूबे अपने दस्तयाब माली वसाइल से मुकम्मल करने की तजवीज़ तैयार कर ली। तीनों मनसूबों की अदमी मंजूरी के लिए सिफारिशात LDA गवर्निंग बॉडी के आइंदा बजट इजलास में पेश की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक अगर मंजूरी मिल गई तो ये मनसूबे 2025-26 के दौरान ही मरहलावार मुकम्मल हो जाएंगे। तालीमी मेयार को बेहतर बनाने की जानिब अहम पेशरफ। 5वीं और 8वीं जमात के सालाना इम्तहानात दोबारा बहाल करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्कूल एजुकेशन निज़ाम में बेहतरी लाने का अहम इकदाम। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तहानात की बहाली की मंजूरी दे दी। अब ये इम्तहानात बोर्ड की तर्ज पर पैक्टा के तहत मुनाकिद किए जाएंगे। कुछ अर्सा कबल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये इम्तहानात खत्म कर दिए गए थे। इस फैसले के नतीजे में तलबा इम्तहानी निज़ाम से नाआशना हो गए। जब 9वीं जमात में पहली बार बोर्ड इम्तहानात का सामना हुआ तो तलबा की बड़ी तादाद को नाकामी का सामना करना पड़ा। हुकाम के मुताबिक नए इम्तहानी निज़ाम से न सिर्फ तलबा को इब्तदाई सतह से इम्तहानी तैयारी का मौका मिलेगा, बल्कि तालीम का मजमूई मेयार भी बुलंद होगा। पंजाब हुकूमत का ये इकदाम तालीमी बेहतरी की सिमत एक मुस्बत पेशरफ्त है।